ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, बेटियां ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, बेवा ਦਾ हक बेवा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो इनके बहन भाइयों ने पूरा हमें तंग करने पे बहुत तंग किया हुआ है। उनकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस पे कब्जा किया हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जैसे गंदी नजर नहीं किसी पे रखना, ऐसे था उसका नजरिया था। इनका हाथ है कि बस ये हमारा ये खर्चा ना बर्दाश्त करे, हमारा ही चलता रहे। अभी यही हाल है इनका। अब उधर जाके देखें हाल कितना बुरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, बेवा ਦਾ ਹੱਕ बेवा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਇਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं ਦਿੱਤਾ जा रहा? ये तारिक टेडी साहब का जब इंतकाल हुआ था ना, इन लोगों ने मिलने नहीं दिया था तारिक टेडी साहब से बच्चियों को। बच्चियाँ बाप से फोन पे राब्ते में रहती थी, वीडियो कॉलें भी करते थे, बातें भी होती थी, मिलती भी थी। रोडों पे मिलना, चोरी मिलना, इनको पता ना चले। तो इनके बहन भाइयों ने पूरा हमें तंग करने पे बहुत तंग किया हुआ है। उनकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस पे कब्जा किया हुआ है। और आज भी हम एहतजाज में हैं कि बेटियों का हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्या बेटियां किसी ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨੂੰ? ਕਿ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਤਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलना, वजह की सीगी? देखिए वो मैं उनकी साबका मिसेज भी हूँ। तो वो चोरी इसलिए मिलते थे कि कहीं मेरे बहन भाइयों को ना पता चल जाए, रोला ना पड़ जाए। फिर अगर रोले पड़ते हैं तो फिर तमाशे लगते थे कि कोई बात ना हो मिसबिहेव के। मीडिया में ड्रामे में काम करता हूँ, एक इशू बने तो ड्रामा वहाँ रुक जाता है। तो इसलिए वो चोरी मिलते थे। पिछले साल वो जुलाई में बेटियां उनके घर गई हैं। मैं बाहर रिक्शे में हूँ और बेटियां अपने बाप से मिलने के लिए 2 दफा गई हैं। तो इन लोगों को नहीं पता था। अगर मिली है वो अपने बाप से मिली थी। ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਣਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹਦਾ? देखिए जो लाहौर वाला मकान है ना, उसमें वरासत इंतकाल हो चुकी है। वो हक में भी हो गया। बेटा कब्जा नहीं दे रहा, उसके बहन भाई कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जो इधर वाला है निशाताबाद वाला, उसमें भी बहन भाई हैं। क्या बेटियों के लिए हर जगह पे बेइंसाफी होगी? तारिक टैडी साहब की बेटियों के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर अमदाद मिली है तो उसके एक बेटे को मिली है, जुनैद तारिक को, और बेटियों के लिए फिर भी नहीं आवाज़ उठी। अगर हुक्मरान के पास एक बेटा गया है, क्या बेटियां नहीं चाह सकती थी? उन्होंने पूरी फील्ड ने इन बेटियों का साथ नहीं दिया। ड्रामे वाले किससे ने भी साथ नहीं देता बिल्कुल नहीं दिया। यहाँ तक तारिक टैडी का जनाजा उठाया गया, सबने सोनू को गले लगाया,
सबने सोनू को प्यार दिया। क्या वो बेटी यतीम नहीं हुई थी उस दिन? इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, उनके सर पे प्यार नहीं दिया। क्या हमने उधर कुछ मांग लेना था आप लोगों से? हमने तो आज भी नहीं फोन इन लोगों को किया कि हम किस हाल में हैं, किसके घर स्टे करते हैं, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से स्कूल की फीसें अदा करते हैं। उन्होंने एक बात नहीं पूछा उस टाइम। उन्होंने जब सफा मरवा फोन करती थी ना, 2 नवंबर को बीमार होते हैं, तो मैं लाहौर में मौजूद थी। मैंने सफा मरवा को बुलाया लाहौर में और तारिक डैडी से मिलाने के लिए। मैं बाहर खड़ी हो जाती, मेरा रिश्ता नहीं था, बेटियों का तो रिश्ता था। इन्होंने फिर नहीं मिलने दिया। जुनेद ने बदतमीजी की, इसके बहन भाइयों ने हॉस्पिटल के बाहर बदतमीजी की। क्यों? वो बाप नहीं था तारिक डैडी। सफा मरवा फोन पे कहती थी, सोनू भाई एक बार मुझे पापा से वीडियो कॉल करवा दो, सोनू भाई मेरी बात करवा दो। इस बच्चे ने उनसे बात नहीं करवाई। फिर 18 नवंबर को हम इधर आते हैं लाहौर, और सुबह को हमने जाना था फरूक हॉस्पिटल। तो हमें टीवी से पता चला कि तारिक डैडी का इंतकाल हो गया है। तो हम उसी रिक्शे से तारिक डैडी के घर पहुंच के बच्चियों को ले गए। किसने लेके जाना था? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ फैसलाबाद की लेना आए हो? मैं फैसलाबाद जो आबाई घर है ना, उसमें से जो बच्चों का हक है वो लेने हैं। वो कहाँ तक पहुंचा केस कितने है ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ तक केस गया की होया की देखिए नहीं? उसकी बहनों ने, मुझे पता चला एडीसीआर ने मुझे निकाल के 2 ये दिए फाइल्स में से उनके। ठीक है, दसो दसो जी बोलो। तो उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि एडीसीआर ने? जी, और एसी सिटी ने ठीक है। फैसलाबाद। तो उसमें से विरासत तारिक डैडी की अभी होगी तो फिर। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। जी जी बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ। जी जी ऐसे। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡੀਸੀਆਰ ਤੇ एससीटी ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ तक हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चों के नाम जरूर करवा के देंगे, आप लोगों को जरूर बुलाएंगे सफा मरवा को। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? बस उन्होंने किया है, पर अभी कब्जा नहीं दिलवा रहे। हम चाहते हैं कि उस घर में दीवार कराई जाए और हम एक कमरे में भी रह सकते हैं। हम जरूर किसी के घर, आज किसी के घर 2 नवाले खाएं तो अगले दिन वो कहेंगे कि हाँ भी इसमें हमने रोटी खिलाई थी, तो किसी ने साथ थोड़ी देना। ये बड़ा मुश्किल होता है मेरा सफर लाहौर में भी और फैसलाबाद आना। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ Arrange marriage। ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ? नहीं, हम एक ही खानदान से हैं, मुगल। ठीक है। तो ऑटो फैमिली। ठीक है। तो रिश्ता एक करवाया था। तो इसके भाई ने फोन करके, फोन अभी हम इधर से गए ही नहीं थे, तो पीछे से फोन, हमें रिश्ता कबूल है कबूल है, इतने फोन आए तो वाह तो हद ही हो गई। फिर हमने अम्मी अब्बू गए लाहौर, देखा, फिर उधर जाके उनको जो, फिर मुझे कहते चलो एक बेटे के लिए तुम हाँ कर दो, कोई बात नहीं, बेटा भी जैसे तुम्हारा भाई है सोमा ऐसे। पर जो स्तेलापन होता है ना वो दिखा के बाद आता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੋ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟੋ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? मुझे बड़े तंग करते थे, बेफजूल हरकतें थी कि जैसे गंदी नजर नहीं किसी पे रखना, ऐसे था उसका नजरिया था। मैंने ना खाना बनाना सुबह टाइम, तो फिर मैंने ऐसे रख देना टेबल पे, शिवाल भाई खाना खा लो, मुझे अपने हाथ से चाय पिलाओ। ये कहाँ का कानून है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पिलानी। मैंने कहा इधर पड़ी है तो खुद ही पी लो, तुम्हारे कौन से हाथ नहीं है। तो नहीं, कहता उल्टी गिनती। मैंने नहीं उसकी बात, ये गलत बातें नहीं मानती थी। कभी मेरे पाँव पकड़ लेना, तो कभी टांगे दबानी, कभी सर पकड़ लेना। क्या तुम्हारा काम है? शादी तो मेरी तारिक डैडी से हुई, तुम्हारा क्या काम है मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करनी? तो मैंने ऐसे रोकना, तो मैं डैडी को भी बताना, तो डैडी साहब ने कहना अच्छा मैं रोक लाऊंगा। फिर अगर मैंने कपड़े ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? मेरी जब बेटी हुई है ना छोटी मरवा, उस बंदे ने मुझे फोन किया, कहता है तुसी घर वसाना कि नहीं वसाना। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? इसके भाई ने, शबाज ने। ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ? हाँ, शबाज ही है, उसका हाथ पूरा है। हाँ। और मुझे गंदा करने के लिए भी मेरे पे कीचड़ उछाला, मेरी बच्चियों पे भी कीचड़ उछाला बाप के इंतकाल पे। क्या बेटियां ऐसी होती कि बाप को मिलने के लिए जाती, उसके जनाजे पे रोती, चोरी वो बातें करती, पापा कब आना, आप कभी मिलने नहीं आते।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ बस सोनू सफा मरवा उन्होंने याद करे अल तेरे तो साढ़े बच्चे दास हुए ऐसी होती थी हरकतें इनकी। इनका हाथ है कि बस हमारा ये खर्चा ना बर्दाश्त करे, हमारा ही चलता रहे। अब भी यही हाल है इनका। अब उधर जाके देखें हाल कितना बुरा हुआ पड़ा है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए, मैं ना तारिक टेडी वो फनकार था जो दिलों में राज करता था। आज उसकी बेटियों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी फील्ड वालों ने नहीं किया। क्या उनके दिल में एहसास नहीं था? क्या उनके दिल में खुदा खौफी नहीं थी? क्या एक बेटा ही यतीम हुआ था आपकी नजर में? अगर आप उन बेटियों के सर पे हाथ रखते ना, आज मैं मीडिया में सरेआम कहती कि फील्ड वालों ने बच्चियों के सर पे हाथ रखा। आज आपने एक बोल नहीं बोला बच्चियों के लिए, उनका हक नहीं दिलवाया, उनकी विरासत में से भी नहीं हक दिलाया। हुकूमत से अमदाद दिलवाई तो एक बेटे को साथ लेके गए। क्या आपके नजर में वो बेटी नहीं नजर आई थी, सफा मरवा? मुझे बहुत दुख हुआ कि आप दो नवाले तारिक टेडी के साथ बंदा खाए हो ना तो याद रखता है। आपने उन बेटियों का साथ नहीं दिया। फिर इसके भाई ने मुझे इतना तंग किया कि सोच से समझ कि मेरे करतार पे भी कीचड़ उछाला। क्यों? मेरा करतार अगर गंदा होता है तो आज मैं इधर मीडिया में बैठी होती या उनकी बेटियों के हक के लिए कोर्ट कचहरियों में जाती। मेरे पे बहुत कीचड़ उछाला। अगर मैं ऐसी होती आज गाड़ियों में सफर करती, उन बच्चियों की खातिर ना होती, साथ ना होती। क्यों? मेरे लिए इतना इंसाफ नहीं है? मैं किसी की बेटी नहीं, मैं भी आपकी बहनों जैसी हूँ। आज मेरे पे कीचड़ उछाला, कल किसी की बेटी पे कीचड़ उछालेगा, चुप हो जाएगा कोई? मैं अगर हूं ना आपके सामने तो मैं सवारी रिक्शों में सफर करती हूँ, मेट्रो में सफर करती हूँ, स्पीडों में, आम बसों में सफर करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपनी बच्चियों का खर्चा अफोर्ड ना कर सकती, फीसें ना दे सकती। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आज हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि प्लीज मेरी बच्चों की 3 माह की फीसें रुकी हुई हैं, इन बच्चों का साथ दें। कहाँ से अफोर्ड करूँ मैं खर्चा? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है, मैं अपने अजीजों के घर रुकती हूँ। मेरे पास खाने के लिए एक टाइम होता है, दूसरे टाइम में कहाँ से पूरा करती हूँ? मैंने मेरे किरदार पे जो कीचड़ उछाला था ना मेरे देवर ने, पहले अपने गिरेबान में जरूर झांके वो किस किरदार का मालिक है। उसने मेरे साथ जो किया मैंने सारा मीडिया में बताया है। गंदी नजर मेरे पे रखता था, मेरी बेटियों पे कीचड़ उछाला कि बाप को गाली निकालती। अगर बाप को मिलने के लिए उसके जनाजे पे रोती, उसको गालियां क्यों निकालती वो? इसने बहुत गंदा मेरे पे कीचड़ उछाला और मेरी बेटियों पे कीचड़ उछाला। खुदा का खौफ खाए, अपने गिरेबान में झांके। मेरे फैसलाबाद वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे बहन भाइयों की तरह हैं प्लीज, और आला हुक्मरानों की तरफ भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इन बच्चियों का साथ दें। पूरी फील्ड से भी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सफा मरवा का साथ दें। एक बेटे के लिए ना बोलें, क्योंकि बेटा भी तारिक टेडी साहब का है, मैं नहीं कहती, बेटियां भी उसी की हैं। मुझे एक साइड पे निकाल दें, इन बच्चों का हक जरूर दिलवाएं, क्योंकि इनका भी हक उतना है जितना एक बेटे का है। लाहौर वाली प्रॉपर्टी पे और फैसलाबाद वाली जो आबाई घर है ना, उसमें से भी हिस्सा दिलवाया जाए। प्लीज फैसलाबाद वाले लोगों मेरा साथ दो, इस टाइम मैं आपके शहर में मौजूद हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਲਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।